क्वेश्चन नंबर 53, हैंडवुड शूज। अभी ये करते हैं। द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन इन सीबी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द क्वेश्चन। हैंडवुड शूज कंपनी। अभी ये कर लेते हैं, लेकिन पहले देखते हैं हमें करना क्या है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस फॉर द चिल्ड्रन शूज डिविजन and demonstrate its impact on Hanwood Shoes company's statement of financial position and forecast earnings per share. ओके, हमें हमें सेल्स प्राइस निकालनी है ना, ठीक है। ओके, हैंडवुड शूज ये रहा। हैंडवुड शूज started trading 40 years ago, manufacturing and selling children's shoes in shops. The shoes have been of higher quality than shoes produced by its competitors, although also more expensive. School shoe sales in particular have been a consistent large generator of cash, helping to fund the company's expansion. About 15 years ago, Hanwood Shoes started manufacturing and selling adult shoes. हैंडवुड एडल्ट शूज, आपको 15 ईयर्स अगो हम लोग सेलिंग एडल्ट शूज हमने स्टार्ट किया था। उसके पहले हम लोग सिर्फ बच्चों के शूज बेचते थे 40 साल तक, ठीक है। हैंडवुड शूज कंपनीज adults shoes are currently sold at a higher profit margin than children's shoes. Hanwood shoes, adult shoes are currently sold at a higher profit margin. Okay, at a higher profit margin, ठीक है। Adult shoe sales now generate majority of Hanwood shoes profits, ठीक है। The adult shoes sold are a mixture of formal types with a long lifespan and some fashionable shoes. The inventory turnover period for adult shoes, the inventory turnover period for adult shoes on an average significantly higher than of children. ऐसे कैसे? इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड तो कम होना चाहिए फिर। ठीक है, कोई बात नहीं। Hanwood Shoe Company is organized on basis of two separate divisions for children's and adult shoes. Its shops sell either children's shoes or adult shoes, but not both. Its shops sell either children's shoes or adult shoes, but not both. Hanwood Shoes also sells adult shoes to other retailers. 5 years ago, Hanwood Shoes Company restricted its cost base. It moved production of children's shoes to new facilities in its home country and outsourced the production of adult shoes to foreign suppliers. However, Hanwood Shoes Board now predicts and profits from children's shoes will increase at a slower rate than adult shoes. It expects that in the next few years, a greater share of children's shoes market will be taken by companies with low cost base. Hanwood Shoes Company board is aware that it must convince the investors that any major strategic changes it makes will result in an increase in earnings per share. Hanwood Shoes Company's board is aware. Hanwood Shoes, एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड ज्यादा रुक जाते हैं। Hanwood Shoes Company board is aware that it must convince investors that any major strategic changes it makes will result in an increase in the earnings per share. Investors will also consider a change in the EPS against any change in the business risk profile of the company. ठीक है, ठीक है। आई फील करंटली तो अपन सही जा रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ थियोरी ही है। अभी तो हमको चिल्ड्रन शूज डिवीजन की सेलिंग प्राइस ढूंढनी है, बराबर है ना। अभी ये सेल ऑफ चिल्ड्रन शूज डिविजन्स, इसका हम लोग को सेलिंग प्राइस ढूंढना है। अभी हैंडवुड हैंडवुड शूज बोर्ड wishes to improve company's cash position for two reasons. हमको दो रीजंस के वजह से इनका कैश पोजीशन इंप्रूव करने का डर लग रहा है। फर्स्ट, लोन नोट्स of $175 million nominal value are due to be redeemed in just over a year's time. Okay, the board is unwilling to seek renewed loan funding because the terms would not be favorable
and some investors have expressed concern about gearing levels. Second, Hanwood Shoes has recently been slow to पे some of its suppliers of adult shoes. अच्छा हाँ, हम लोग मतलब suppliers को भी धीरे धीरे पे कर रहे हैं, ऐसा हो गया है. One major supplier recently delayed delivery of shoes to Hanwood Shoes until it was paid for previous deliveries. Hanwood Shoe Company's chief executive proposed that the company should in future only sell adult shoes and should sell children's shoes division. अच्छा, हम लोग को बेच देना है इस डिवीजन को. ही बिलीव दैट ठीक है, अभी ये सब उसके मुझे लगता है आगे चल के यही सब बकचोदी होगी कि अरे बेच रहे. अब ये देखो, the finance director suggested that the proceeds from sale of the division could first be used to pay off the loan notes. It would then be used to increase cash held and thus improve liquidity. The remaining proceeds would be invested in adults shoes division to improve earnings per share. ठीक है, तो अभी ये सब जो है इससे हमें शायद सेल प्राइस निकालनी है. The sales price of children's shoes division will be the same. Will be the sum of the present value of the predicted future free cash flows. ठीक है, तो हमको फ्री कैश फ्लो मेथड यूज करना है बेसिकली. क्वेश्चन 53 हैंडवुड कंपनी 0 1 2 3 4 टैक्स कौन सा हमें पे करना है, एनुअली पे करना है. ठीक है, लेकिन मुझे फ्यूचर का भी होगा तो मैं फिफ्थ ईयर बाजू में ही बनाऊंगा. वर्किंग नोट्स. प्रिडिक्टेड आफ्टर टैक्स फ्री कैश फ्लोज ऑफ शुड. ठीक है, तो प्रिडिक्टेड, यू नो व्हाट, चीज में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. 76, 81, 85, 88. The predicted after tax profits of children's shoes division in 1 year can be assumed to be 76. बराबर है, वही तो है. The total after tax profits of Hanwood shoes for year 1 if children's shoe division is not sold is predicted to be 217. हाँ, ये क्या है भाई. The total after tax profits for year 1. क्या है ये, नीचे टोटल आफ्टर टैक्स. ठीक है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स after year 4 free cash flow from children's division should be assumed to be at an interest rate. After year 4 the free cash flow from children's division should be assumed to be increase एट अ रेट ऑफ. हाँ, तो ये इन्होंने इंक्रीज का दिया हुआ है, तो ग्रोथ दी हुई है उन्होंने यहाँ पे इंटू 1.035. द प्रोसीड्स रिसीव फ्रॉम सेलिंग द चिल्ड्रंस डिविजन would be used first to pay off 9% of loan notes. The remaining amount from the sale proceeds will be held as part of current assets. So that the current ratio increases to 1.4. The rest of the sale proceeds will be invested in the non-current assets. ठीक है. The profit on sale of children's shoe division should be taken directly to reserves.
then the non-current asset of Children's Insurance Division can be assumed to be say 608 and the current assets दिया हुआ है. The additional investment in non-current assets is expected to earn 18% pre-tax return and additional investment in current assets ठीक है. टैक्सेस पेपर ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं. मतलब ये टोटल आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स क्या है, मुझे समझा नहीं, तो इसको रहने देते हैं. इधर मैं डायरेक्टली ना डिस्काउंटिंग कर लेता हूँ जरा. कितने की है ये डिस्काउंटिंग? 10% की. सो 0.909, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. अभी रिटर्न्स फॉर द 4 years after 4 years till perpetuity, इसका आता है 0.08. KE minus G, which is 10% minus 3.5%. ये this divided by this, और इस चीज को मैं लगाऊंगा डिस्काउंटिंग. होगी पहले ये 4 year 4 की डिस्काउंटिंग, तो ये हो जाता है रिटर्न्स फॉर आफ्टर 4 years. तो मेरा टोटल जो बैठता है ना वैल्यूएशन, वो बैठता है 1217 का मेरा वैल्यूएशन बैठता है. द ओनली प्रॉब्लम इज ना, इस पूरे क्वेश्चन में मुझे ये समझ में नहीं आया अब तक कि ये 217 क्या है. ये 217 मुझे नहीं समझ में आया. बाकी सब तो आई एम प्रिटी, मतलब प्रिटी श्योर मेरे को ये आ गया है. अह, नॉट श्योर. हम्म. ठीक है. आई थिंक इसको यार क्या करे, 217 बनाए क्या इसको. कि शायद इसमें कुछ टीएडी वगैरह आ गया होगा, मे बी. मे बी. ये ना टोटल दिया हुआ है यार, पता नहीं चल रहा. देखेंगे एक बार, आंसर चेक कर लेते हैं. नहीं उन्होंने, नहीं नहीं नहीं, बराबर पहले ही बराबर था मेरा यार, बाद में चेंज किया. उसका 7660 है. तो दे हैव गॉट 1217 ओनली. दे दैट्स आल्सो व्हाट वी हैव गॉट. सो दिस इज द वैल्यूएशन एज पर फ्री कैश फ्लो. ठीक है ना, वैल्यूएशन एज पर फ्री कैश फ्लो, ये इतना हो गया. अभी उसका तुमने क्या बोला, ये मेरी सेल प्राइस हो गई, एक्सपेक्टेड सेल्स प्राइस. अभी फिर क्या बोला है, इसी प्राइस पे अज्यूम करना है क्या कि दैट वी आर सेलिंग. ठीक है, तो हम इस वैल्यू को हम सेल कर देते हैं, हम अज्यूम करके चले. सो दैट डेमोन्स्ट्रेट इट्स इम्पैक्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसा दिखेगा. हम्म. नाउ let us demonstrate how it will look in the on the face of on the face of statement of financial position. So this is particulars amount changes. Can I make this one like ऐसा wrap text tag? नहीं, wrap text merge center कर देता हूँ. Amount 1 2 3 4, इतने चेंजेस होंगे ऐसा इज व्हाट आई फील. अभी यहाँ पे
कैसे करूँगा? प्रीवियस। ओ कम ऑन। प्लस सेल अमाउंट। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ? इसको मैं नॉन, यार आई थिंक आई शुड जस्ट कॉपी पेस्ट, बहुत ज्यादा टाइम टाइम भी सेव हो जाएगा यार, है ना? नॉन करंट एसेट्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। क्या करूं मैं? लिखूं क्या टोटल इक्विटी वगैरह? चलो लिख देता हूँ, मैं कभी लिखता नहीं हूँ ऐसे। नॉन करंट एसेट्स। द प्रॉब्लम एग्जाम में क्या होने वाला है, वो क्वेश्चन रीड करने में इतना टाइम चला जाएगा ना। जो इतना तो 10 10 साल का था क्वेश्चन है वो, इतना पढ़ने में ही पड़ जाएगी। तेरा सर झुकाते हैं, अरे काश तुरंत ये रहा, इसको बोल्ड कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया। सम, दिस इज सम। ठीक है, अभी इसी सम को नीचे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसमें टोटल एसेट्स को ऐसे ऐसे ऐड करेंगे। इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर डायरेक्टली करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी, टोटल इक्विटी के यहाँ पे दिस प्लस दिस, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल, कहाँ गया नॉन करंट एसेट्स? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, इधर कुछ नहीं है, इधर कंट्रोल सी, इधर जाने दो ना। चलो कर देते हैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी। At the end of the day, what should happen is this value minus this value should be 0. Okay, so now let's do it. पहले तो वैसे के वैसे प्रॉपर बैलेंस शीट को छाप देते हैं। 1200 909 50 737 175 145 108, करंट लायबिलिटीज 894। बैलेंस शीट मैच हो रही है, स्टार्टिंग में बिल्कुल मैच हो रही है। चलो अभी आगे बढ़ सकते हैं। फर्स्ट वन, हाउ टू यूज द सेल अमाउंट। ठीक है ना? इस अमाउंट को मैं 1216, नहीं इसे मैं लिंक ही देता हूँ, मैं डायरेक्टली सिर्फ लिंक ही दे रहा हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, सारा का सारा पैसा जो है प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टली टेकन टू रिजर्व। रुक जाओ। हमें सबसे पहले proceeds received from selling the children's shoes would be used to first to pay off 9% लोन नोट। तो चलो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको 9% लोन नोट्स को पे ऑफ करना है। चलो ठीक है, वो हम कर देते हैं। 9% लोन नोट्स को पे ऑफ। ऊपर जो हमें दिया था, वो बोला फर्स्ट टू पे ऑफ लोन नोट्स। देखो 5 लेटर में हुआ था इन जनरल सारे सारे लोन नोट्स को पे ऑफ करना है, लेकिन एडजस्टमेंट में बोला है सिर्फ और सिर्फ इस लोन नोट को पे ऑफ करना है 9% के।
ठीक है, तो चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पे ऑफ दिस लोन नोट्स। कितना है वो? 175। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट करना है ना मुझे। हम्म। हाउ विल आई डू इट बट अभी सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं इसको पूरे के पूरे सेल को यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं दूसरा शायद यहाँ पे रिजर्व्स में ऐड करूंगा मेरे, बिकॉज मेरे सेल प्रोसीड्स है, बराबर है। दीज आर ऑल माय सेल प्रोसीड्स। ना दैट दीज आर माय सेल प्रोसीड। मैं काम कर सबसे पहले ना इन सेल प्रोसीड्स को मैं ऐसे का ऐसा इधर में माइनस में लिख देता हूँ कि मैं माइनस कर रहा हूँ 175 इसमें से, बराबर है। नहीं, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? एक मिनट। मैंने यहाँ पे -175 लिख दिया, बराबर है। अब जब मैंने यहाँ पे -175 लिख दिया, व्हाट कैन आई डू इज, मैं बाकी के पूरे अमाउंट को मुझे, पूरे अमाउंट को नहीं, मुझे कितने तो एक अमाउंट को लेके जाना है करंट एसेट्स के यहाँ पे। वेट, इसका सिंपलीफाई करने का कुछ तो तरीका होगा यार। एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैंने इसको बेचा ना, तो मैं इसको यहाँ लेके जाता हूँ और रिजर्व्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, दिस इज माय कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना चाहिए क्या, कैसे भी करके। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक कर रहा है। ये बहुत वियर्ड दिख रहा है, मुझे लग रहा है ऐसे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मुझे लगता है डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ये होना चाहिए था। अभी मैंने इतना कैश यहाँ पे डिपॉजिट किया, मैंने इतना कैश यहाँ पे डिपॉजिट किया। अभी आ, मैं क्या करूंगा, मुझे लोन और सबसे पहले पे ऑफ करना, तो मैं क्या करूंगा, सॉरी, 8% के पे ऑफ, 9% के पे ऑफ करना है। यहाँ पे जाऊंगा, -175 लिख दूंगा। वैसे ही ऊपर यहाँ पे करंट एसेट्स में भी सेम लिंक यहाँ पे इसकी -175 की दे दूंगा। ठीक है, अभी अभी नाउ Now we have to take some amount as cash to the current assets. The amount should be such that the the amount should be such that the current ratio should be 4:1. No, should be 1:4. 1.4, नहीं 1.4, सॉरी, माई बैड 1.4, माई बैड। हाँ, ये 1.4 में होता है, 1:4 में नहीं होता ये रेशियो। माई बैड। um ये एक्चुअली वी डिड नॉट लुक टेक दिस इनटू कंसिडरेशन। अगर मैं बेच रहा हूँ ना, तो देखो 349 और 1608, ये तो द नॉन करंट एसेट्स ऑफ चिल्ड्रन शूज डिवीजन कैन बी अज्यूम्ड, ये तो नॉन करंट एसेट्स हो गए इसके ही। 608, 349 इसका सम कितना होता है? एंड व्हेन आई डू दिस एडिशन टू 175, 132। हाँ। हम्म
रुक जाते, थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, वेट करते थोड़ी देर के लिए। ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अम फिलहाल मेरा करंट रेशियो कितना है? कि माय करंट रेशियो इज, व्हाई एम आई डूइंग इट लाइक दैट? करंट रेशियो कितना भी होने दो, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, बराबर है। नाउ माय करंट रेशियो शुड बी 1.4। उसके हिसाब से मेरे को मेरे करंट एसेट्स एडजस्ट करने हैं। व्हाट इज माय करंट लायबिलिटीज राइट नाउ? 894। सो current assets should be 894 into 1.4, it is 1251.6। अभी मेरे, so my current assets should be 1251.6, not more or less than that। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को कितने माइनस करने पड़ेंगे मतलब? अभी मेरे पास 909 थे, राइट? तो मुझे अभी कितने की रिक्वायरमेंट होगी मतलब? मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ होगी 342.6 की। ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ 342.6 की होगी। मेरे पास करंटली करंट एसेट्स में पड़े हुए 1041.97। तो अब मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगा। मुझे यहां से माइनस करना है 699.37, और यहाँ पे ऐड करना है 699.37। कि बाकी की चीजों को मैं करंट एसेट्स में लेके जाऊंगा, मैंने ऐसा बोला हुआ है। ठीक है ना? दिस इज व्हाट माय आंसर शुड बी लाइक। अभी देयर इज वन स्मॉल प्रॉब्लम, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम एक्चुअली। एक्चुअली यू नो व्हाट, वेट वेट वेट, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने से पहले ना, ये दोनों चीजें मैंने जो मैंने लिखी ना पे -699.37, इसको करने से पहले ना एक काम करना बाकी है। मुझे मुझे पता है क्या लगता है, देखो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू, सॉरी, वो नहीं, द नॉन करंट एसेट्स ऑफ चिल्ड्रन स्कूल्स डिवीजन कैन बी अज्यूम टू बी 608 एंड 349। तो मुझे लगता है ये चिल्ड्रन स्कूल्स डिवीजन अब अभी जब हम लोग निकाल रहे हैं ना, राइट, तो इसको अगर हम लोग निकाल रहे हैं, हम लोग को इसको हटा देना चाहिए इसमें से, है ना? We should remove this first. So when we remove it first, -349 and -608, मैंने ये कर दिया। सेकंड इम्पैक्ट क्या जाएगा इसका? क्योंकि मैंने ये हटा दिया, my this value तो should be 0.67, my this value should be this only। तो मैं क्या करूंगा, -this प्लस दिस वैल्यू 350.7 माइनस दिस, अभी भी मेरे को इतना ही आ रहा है। रिजर्व से हटा दूं क्या इसको? मैच तो हो जाएगा फिर, मैच तो एग्जैक्ट हो जाएगा, ये देखो। फिर ठीक है, 0.077 समथिंग समथिंग का डिफरेंस है, बट दैट इज ओके, दैट इज मार्जिनल। पर 2194 पे मैच हो रहा है क्या बैलेंस शीट? वो चेक करना पड़ेगा। ओ 2194 पे एग्जैक्ट हो रहा है, नाइस। नाइस, 2194 पे एग्जैक्ट हो रहा है। दैट्स दैट्स क्रेजी। बस मुझे मुझे ना लगता है मेरा इम्पैक्ट थोड़े से गलत दिए है मैंने।
बस वो एक बार ना चेक करना है। ये देखो, जैसे सबसे पहले बात तो मैं कैश वहां पे लेके गया, तो वो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया, मतलब उसको दिखाने लायक नहीं समझा। मेरा रिजर्व्स का बैलेंस बराबर आया क्या? हाँ, रिजर्व का बैलेंस बराबर है, 990 परफेक्ट आया है। ओ, मैंने एक्चुअली काफी सही सॉल्व किया क्वेश्चन को, अगर तुम देखोगे तो, क्योंकि बस मैं इनका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है। ये देखो, व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने यहाँ, अच्छा मुझे ना यहाँ पे भी हमेशा लिखना पड़ेगा कि मेरा वन केल्विन, टू, थ्री और फोर केल्विन का। तो मैं एक बार ना एक्सप्लेन एक्सप्लेन भी करता हूँ साइड बाय साइड। बस यहाँ पे लिखा, इंट्रोड्यूसिंग द सेल प्रोसीड्स इन द बैलेंस, in the balance sheet first। ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, जो भी हमारे सेल प्रोसीड्स थे ना, ये देखो, इसको हमने यहाँ पे 1216 और 1216 की तरह ट्रीट कर दिया, ठीक है। सेकंड क्या है, वी पेड ऑफ द लोन नोट्स, ये भी हो गया, हमने पे ऑफ कर दिया लोन नोट्स। अभी थर्ड क्या है, वी रिड्यूस्ड द वी रिड्यूस द फिगर्स ऑफ चिल्ड्रंस शूज एडजस्टमेंट। चिल्ड्रन शूज, मतलब देखो, मैंने मैंने बताया क्या किया है। ये देखो, अभी ये जो चिल्ड्रन के शूज हमने बेचे ना, तो जब मैंने जो यहाँ पे पहले कैलकुलेशन किया था ना, ये देखो, ये 6999, ये मैंने ये मैंने बिना देखे किया था कि हमने ये वाला बेचा है। ये देखो, नॉन करंट, मैंने ये वाली लाइन बाद में पढ़ी, ठीक है ना। तो क्योंकि हमने ये बेचा है, तो अभी हम लोग को पता है क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले वी हैव टू फर्स्ट रिड्यूस द फिगर्स ऑफ चिल्ड्रन शूज। हमने पहले चिल्ड्रन के शूज के फिगर्स को हम लोग ऐसे, मतलब वो रिड्यूस कर देंगे, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी ना, जैसे देखो, मैं ना, ये देखो 1607 है, मैं अभी बताता हूँ मैं हमने कैसे किया। मैं यहाँ पे ना एक और वर्किंग नोट बना देता हूँ अभी के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना देता हूँ, वरना तो एग्जाम में तो ठीक है भाई। देखो, जैसे करंट एसेट्स थे, ठीक है ना, हमने चालू कैसे किया था, ओ शिट, ओके, वेट वेट वेट, ओ मैंने यहाँ पे ना वो लिंक दिया था ना, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बना दूंगा अच्छे तरीके से। देखो, करंट एसेट्स था ना, तो ये मेरा करंट एसेट्स था। अभी मेरा सबसे पहले चालू कैसे हुआ था, ओपनिंग से। ओपनिंग था मेरा 909, बराबर है। फिर मैंने इंट्रोड्यूस की मेरी सेल वैल्यू जो थी 121। अभी इसको तुम लोग 1217 भी ले सकते हो, लेकिन मैं तो कैसे लिंक देने वाला हूँ ना एग्जाम में, तो मेरा पता नहीं कैसे आएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है। लोन नोट का कितना है, -175, ठीक है ना। और फिर कितना है, ये मेरा रिडक्शन फ्रॉम, क्या बोलते हैं, रिडक्शन फ्रॉम चिल्ड्रन शूज चिल्ड्रन शूज डिवीजन, बराबर है। तो ये कितना था मेरा, -349। अभी ये देखो, ये सब करके मेरा कितना आ रहा है, मेरे को आ रहा है 1601, नहीं मतलब फिलहाल मेरे करंट एसेट्स इस वैल्यू पे बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एडजस्टमेंट में मेरे को क्या बोला है कि मेरा करंट एसेट्स और करंट लिक्विडिटी में, सॉरी, मेरा करंट रेशियो शुड बी 1.4। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। मेरे पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू ऑलरेडी थी, तो मैंने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली। और मे नाउ माई करंट एसेट्स, फॉर द लव ऑफ गॉड, शुड बी ओनली 121.1251.6। इससे ना कम ना ज्यादा, क्योंकि अगर मैं इसको कम ज्यादा करूंगा तो मेरा ये 1.4 हिल जाएगा एंड इट विल ब्रीच द कंडीशन विच दे वर सेइंग। तो अब मेरे को क्या करना है, माई वैल्यू शुड ओनली बी, बट माई वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स कैन नॉट एक्सीड 1251.6 0.6। तो अब क्या होगा, 1251 पॉइंट, अरे यार क्या हो गया, नमलॉक 1251.6। तो अब मुझे कितने से वैल्यू कम करनी पड़ेगी, मुझे इतने से वैल्यू कम करनी पड़ेगी मेरे इसके नॉन करंट, सॉरी, करंट एसेट्स की। तो ये मैंने कर ली, और देखो फिर मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई, 1293.97। अच्छा हाँ, जो बाकी की माइनस हुई अमाउंट है, उसको मैं बाद में री इन्वेस्ट करूंगा नॉन करंट एसेट्स में, ऐसा उन्होंने ही मेरे को बोला था।
तो ये भी मैंने कर लिया। ठीक है ना, सो दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। अच्छा, अभी ना ये एक सवाल सबको आएगा कि यार फिर, लेकिन ये जो उन्होंने बाद में लाइन दी है कि अरे एक्सपेक्टेड टू अर्न 18% एंड एक्सपेक्टेड टू अर्न 6%, इसका इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? तो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज कि उन्होंने हमें क्या बोला है, करंट रेशियो शुड बी 1.4। अरे अभी हम लोग मूव ही नहीं कर सकते करंट रेशियो को, और अगर हम लोग ये वाला रिटर्न का एडजस्टमेंट करेंगे ना, तो हमारे ये रिटर्न का एडजस्टमेंट कैसे होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग्स ही क्रेडिट होगा ना, बिकॉज इसका जो प्री टैक्स रिटर्न है वो जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स में। तो जब भी ये लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए देते हैं ना, तो ये लोग ये दोनों एडजस्टमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी देते ही हैं। लेकिन इसी चीज का सेम इफेक्ट जाएगा अपने क्या बोलते हैं वो, ईपीएस में। ईपीएस में 100% इसका इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? तो फोर्थ का तुम लोग बाद में बाद में वो लिख देना। अभी के लिए मैं ईपीएस कैलकुलेट करता हूँ। कितने मार्क्स का था? 13 मार्क्स के लिए, बहुत एक्चुअली ये कम मार्क्स के लिए आया, बट ठीक है। अभी करते हैं थर्ड वाला पार्ट, विच इज फोरकास्ट ईपीएस। बराबर है, अभी फोरकास्ट ईपीएस करना है। सो फॉर फोरकास्टिंग द ईपीएस वी रिक्वायर अर्निंग्स एंड द नंबर ऑफ शेयर्स। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। अर्निंग्स शेयर, अरे शेयर लिख दिया मैंने, शेयर्स ईपीएस। ये कितना आता है? अर्निंग्स डिवाइड बाय शेयर। तो ये जितना भी आएगा मैं बाद में लिख दूंगा। अभी मुझे शेयर तो शायद पता होंगे ना। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल 50। अब सेंट्स में है, डॉलर में, वो पता नहीं है ना अभी तो। वो थोड़ा पता नहीं है। इधर किधर दिया है, इधर भी नहीं दिया है। क्या करें फिर? रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए, जरा सोचते हैं। इधर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये डॉलर्स में कि इसमें, तो मैं फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेता हूँ कि ये ऐसे ही उन्होंने दिए हुए हैं। तो 50, मतलब 50 फॉर, मतलब फॉर वन दिए हुए हैं। बेसिकली मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि दिस इज फॉर $1। बाद में देखते हैं, अगर गलत गलत तो गलत चेक कर लेंगे बाद में। अभी अर्निंग्स मेरे को कैलकुलेट करने हैं आफ्टर द सेल। बराबर है, अभी मुझे अर्निंग्स करने फॉर आफ्टर द सेल। अभी प्रॉफिट आफ्टर सेल ऑन टैक्स और सेल डिविजन शुड बी डायरेक्टली टेकन द रिजर्व्स। नाउ व्हाट वेर माय प्रॉफिट्स? मैं कैसे करूंगा? तो फिलहाल तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। मुझे जहां तक मुझे आता है, मुझे रिजर्व से ही, मुझे मुझे मेरे रिजर्व्स को ही मेरा ओपनिंग बैलेंस बनाना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और प्रोजेक्टेड आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना। ओ नाउ आई रियलाइज वो 217 क्यों दिए हुए थे। ये देखो, ये जो है ना, कहाँ गया वो 217? किधर तो दिया था ना। हाँ ये देखो, ये जो था ना, जहाँ मैंने गलती से लिख दिया था, ये देखो, टोटल आफ्टर टैक्स प्रॉफिट्स फॉर हैंडवुड शूज इन ईयर, फॉर ईयर 1 इन चिल्ड्रन शूज नॉट सोल्ड, फॉर शूज नॉट, हाँ नॉट सोल्ड इज 217। तो मुझे ये 217 यहाँ से माइनस करना है, बिकॉज इट इज प्रॉफिट ऑफ चिल्ड्रंस डिवीजन। अब मैं क्या निकालूं कि अगर मैं चिल्ड्रंस डिवीजन बेच दूंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो मुझे ये चीज एक्चुअली माइनस करनी है। नाउ आई रियलाइज, नाइस। ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने ये लोन नोट्स पे ऑफ कर दिए ना, तो उसके ऊपर का मेरा इंटरेस्ट सेव हो गया। सो लोन नोट्स के ऊपर का इंटरेस्ट तो कितना था? लोन नोट्स 175 के थे एट 9% इंटरेस्ट। तो वो अब मेरा सेव हो गया। कितना सेव हुआ? 15.75। बराबर है। इंटरेस्ट सेव्ड ऑन लोन नोट्स इज 15.75, but at the same time tax relief lost on the interest
इज कितना, टैक्स कितना रेट है? 20% ऑन प्रॉफिट्स, तो हाँ 20% बेसिकली, तो इसका टैक्स लॉस्ट हो गया। अभी उसके बाद हाँ, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन नॉन करंट एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी 18%। अब मैं ऐसे ही कर देता हूँ जरा, फालतू में मैं, वरना बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, नीचे आना पड़ रहा है, थोड़ा गलत हो जाएगा। तो ये अभी रिटर्न कितना एक्सपेक्टेड है मुझे? 18% ऑन इस पे, और इस पे कितना है? 6% ऑन करंट एसेट्स। तो दिस इज 6% इसका, एंड दिस इज 18% इसका। तो सी, दिस इज माय रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन करंट एसेट, टैक्स ऑन डी रिटर्न्स, ऐसा मैं कर लेता हूँ। तो इसके सबसे पहले कर देता हूँ, रिटर्न ऑन करंट एसेट ये मैंने लिख दिया, रिटर्न ऑन, सॉरी, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट ऊपर लिखा, रिटर्न ऑन करंट एसेट्स नीचे लिखा। अभी टैक्स के लिए मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू माइनस, ब्रैकेट ओपन, दिस ब्रैकेट क्लोज इनटू 20%। तो मेरे को डायरेक्टली दोनों के टैक्स का वैल्यू मिल गया। सो नाउ व्हाट विल बी माय अर्निंग, मुझे लगता है इतना ही है ना, और तो कुछ नहीं किया है ना। कैश, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ चिल्ड्रन शूज डिवीजन शुड बी टेकन डायरेक्टली टू रिजर्व्स। रुक जाएगा, प्रॉफिट ऑन चिल्ड्रन शूज बी टेकन, प्रॉफिट जो मुझे हुआ है, प्रॉफिट तो मुझे हुआ है, क्योंकि कितना हुआ है, मैंने सारे चीज सारे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं ना यार, वो भी तो है। तो मैं प्रॉफिट अब कैसे अलग से दिखा सकता हूँ ना, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने अगर सेल, आ, क्या मैं सेल प्रोसेस से अलग से दिखाऊंगा? तो वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मतलब वो रिटर्न दिखा दिए हैं, अर्निंग्स चीज दिखाने तो चाहिए ना। लेट्स चेक बाद में, अभी के लिए ये लिख देता हूं मैं, 11.9 मतलब एक तरीके से 12 का ईपीएस आ रहा है मेरे को। चेक करते ईपीएस बराबर है या नहीं, नहीं नहीं, ये ईपीएस इज वेरी रॉन्ग, ईपीएस इज सो रॉन्ग राइट नाउ, माय गॉड। अच्छा, प्रिडिक्टेड पोस्ट टैक्स प्रॉफिट उन्होंने 217 ही रखे हैं, ओके ओके ओके। दे मतलब वो रिजर्व्स को ओपनिंग में लेना ही नहीं है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग प्रिडिक्शन टू मेक, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम चिल्ड्रंस डिविजन 217, ठीक है, 217 लेस प्रॉफिट फ्रॉम चिल्ड्रन शूज, प्रेडिक्टेड टैक्स प्रॉफिट्स। आई डेंट गेट इट यार, एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। मैं ईपीएस निकाल रहा हूँ कि अगर मैं शूज वाली डिवीजन को बेच दूंगा तो मेरा क्या होगा, बराबर है। अगर मैं नहीं बेचता हूँ तो 217 का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, ओ ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। अरे रे रे रे, भाई 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 भाई, व्हाट अ ब्लडी मिस्टेक यार, शिट शिट शिट, ये मेरा टोटल प्रॉफिट है। आ दिस इज माय टोटल प्रॉफिट, एंड दिस इज माय चिल्ड्रंस का प्रॉफिट, विच आई विल लूज, विच इज -76 ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओ माय गॉड, सच अ सिली मिस्टेक। हाँ, अब बाकी सारी चीज तो सेम होंगी ना। नेट टैक्स उन्होंने 13 दिया है, हाँ अगर तुम नेट टैक्स करना चाहोगे तो तुमको मिलेगा 12.6, मतलब, और उन्होंने लिया है 13, विच इज फाइन। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, और ये करंट एसेट देखो उनको 50 और 33, मतलब 83 आ रहा है। इफ वी डू लाइक दिस, देन वी गेट 67, एक मिनट रुक जाओ, और 237, दे हैव नॉट कंसिडर्ड टैक्स का इम्पैक्ट इन दिस रिटर्न। नहीं नहीं किया है यहाँ पे, वेट, 962, 692 एंड 350, उन्होंने ओपनिंग बैलेंसेस लिए हुए हैं सबके। उन्होंने ना ये देखो, एडिशनल नॉन करंट एसेट और करंट एसेट्स में ना
ओपनिंग बैलेंसेस लिए हुए ऑफ द करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. What did we take? Additional investment in non-current assets is expected to an 18% pre-tax return, and additional investment is expected to earn 6% pre-tax return. Hmm. Have they got this amount में 350 और ये मुझे बस वो जानना है. This for me is still a little question. 08 and 350 and 692. 350 तो बराबर है ये वाला. This thing is correct. For non-current assets, they have done accurately. बराबर है. एंड टैक्स का भी इम्पैक्ट उन्होंने मतलब लेना है. ऑफ कोर्स लेना है टैक्स का इम्पैक्ट. मैंने पता नहीं क्यों नहीं बोला था. लेकिन इन्होंने करंट एसेट्स में ना एक अलग अमाउंट ली है. फॉर नॉन करंट एसेट्स दे हैव टेकन द परफेक्ट अमाउंट. फॉर करंट एसेट्स दे हैव टेकन अ डिफरेंट अमाउंट ऑल टुगेदर, विच मेक सेंस टू मी बिकॉज सी मैंने बताया क्या किया है. मैंने नॉन करंट एसेट्स में जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट की है ना, मैंने उसका 18% बराबर लगाया है. लेकिन मैंने करंट एसेट्स में तो मैंने मतलब पैसे निकाले हैं ना. देन व्हाई एम आई टेकिंग दिस इम्पैक्ट इनटू कंसिडरेशन. मैंने तो करंट एसेट से पैसे निकाले -350. So I should not be taking -350. I should be taking the amount that I have invested in the current assets and how much have I invested in the current assets. ये मैंने ऊपर एक कॉलम बनाया था ना. हाँ देखो मतलब वो रिमेनिंग वाला. मैं इसको बाद में भरा ही नहीं. डाउन. वेटा. डाउन. ये देखो ये मेरे पास आफ्टर लोन नोट्स पे करने के बाद 1041 थे. बराबर है. मुझे करंट एसेट्स में 12516 डालने थे. तो मुझे और कितने पैसे डालने थे इसके अंदर. वैसा आया था ये क्वेश्चन मेरे लिए. है ना. बट द फैक्ट इज कि देखो इन्होंने यहाँ पे 3692 इन्होंने कैलकुलेट किया है. मुझे ये फिगर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. बिकॉज मैं डायरेक्टली 120 1251.6 फिगर पे ऑलरेडी पहुंच गया था. सो आई डेंट हैड टू कैलकुलेट दिस फिगर. बट नाउ व्हेन आई फॉर दिस कैलकुलेशन की हाउ मच अमाउंट आई इन्वेस्टेड, नाउ आई हैव टू कैलकुलेट ये वाले फिगर मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है. हाउ विल आई कैलकुलेट. एक काम करते हैं ना. देखो मैंने इस 1216 को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है. लोन नोट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स. बराबर है. अब लोन नोट्स में मैंने डाले हुए -170 मतलब 175 रुपीज. मुझे करंट एसेट्स का फिगर फिलहाल पता चलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. मेरे को नहीं समझ में आ रहा है मैंने कितना डाला है, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्लोजिंग वैल्यू पे पहुंच गया था 1251.6 के. तो मैं क्या करता हूँ. अब मैं थोड़ा अटक सा गया हूं ना. लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने नॉन करंट एसेट्स में कितने पैसे डाले थे. मैंने डाले थे 150, सॉरी 350. तो मैं इस फिगर को यहाँ पे लिख देता हूँ. सो नॉन करंट एसेट्स में मैंने डाले थे -350.37. सो अभी जो भी पैसे बाकी हैं वो मैंने डाले हैं करंट एसेट्स में. समझे. सो 691.6 मैंने डाले हैं करंट एसेट्स के अंदर. ऑब्वियसली द द द रिटर्न दैट यू will gain will be on the amount that you have invested. I by mistakenly took both the values as 350 350 because I thought कि adjustment का ही value है. but वैसा नहीं है. It is the amount that you have invested in the current and non current assets which I have now taken properly. तो मेरे को EPS देखो 4.74 का आ गया. Now this is 474.5 cents or $4.745 whatever. ठीक है ना. दिस इज हाउ यू कैलकुलेट. उन्होंने पिछले साल का भी किया हुआ है विच इज फाइन. वो कर देना बाद में कंपेरेटिव. एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द थियरी पार्ट. Discuss whether Hanwood Shoes Company's investors are likely to be satisfied with the proposed sale of children's shoes divisions and its consequences for profits and funding. Discuss whether Hanwood Shoes investors
are likely to be satisfied with the proposed sale of children's shoes and its consequences for profits and funding. ठीक है। शेयर कहाँ पे है? ओ, अच्छा, ये हमको बताना है क्या? इन जनरल जेनरिक आंसर देना है क्या? तो कॉपी पेस्ट करेंगे बहुत सारी चीजें, कि जैसे कि स्लो रेट पे ग्रोथ होगा, एडल्ट शूज ज्यादा बिकेंगे, ये सब वो सब बताएंगे। व्हेन इट कम्स टू शेयर होल्डर्स, द नहीं, ये मेरी लिस्टेड कंपनी है क्या? मुझे बोला तो नहीं गया कि ये लिस्टेड कंपनी है। तो शेयर होल्डर्स, ये शब्द शायद मुझे नहीं यूज करना चाहिए ना। इन्वेस्टर्स के अगर मैं बताऊं, सो इफ इट इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर्स, देन द सोल मोटिव शुड बी to increase the profits as much as possible. However, there are various types of investors that might have invested in the company, um, such as अच्छा, अभी सच वगैरह में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं एक बता सकता हूँ कि द एज द लोन नोट्स आर गेटिंग पेड ऑफ, then the 9% interest on the same will get saved, and thus the profits in the future years will get reduced. Sorry, the profits for the upcoming years will get increased. Secondly, once we are stopping the children's division, the handwood shoes can solely focus on the aspect of the adult shoes. However, there will be significant redundancy costs and significant shutting down costs involved for the outlets where this handwood did not have its previous outlet, uh, because certain outlets only sold the children's shoes and the other outlet shows the adult shoes. So now when the children's shows are getting closed, handwood can expand their reach and increase their showrooms for adult shoes significantly. Um, secondly, the cash that has been used, or the increase in the current assets in the form of cash from sale of proceeds can be used to pay off the trade suppliers. ये देखो, हमारे जो suppliers हैं इनको हम pay off करने में help कर सकते हैं, so that the supplier terms are maintained appropriately, because the current liabilities are significant 894. Though split is not given for the trade payables, still an assumption can be made um, that the suppliers are dissatisfied looking at the rest of the information provided to us. फिर हम बाकी सारे को मतलब पे ऑफ कर सकते हैं। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव द लिक्विडिटी। उसके आगे एक मिनट, इन्होंने अर्निंग्स पर शेयर बोला है ना? अर्निंग्स पर शेयर बताओ, अगर ईपीएस कैलकुलेट करो तो शायद शेयर का मतलब होता है कि लिस्टेड होनी चाहिए, बट आई थिंक लेट्स नॉट गेट इनटू दैट फिलहाल के लिए। नेक्स्ट थिंग, लोन नोट्स विल गेट पेड ऑफ if sales increases and the cash and the current assets balance increases, or the profits increases. Current assets balance नहीं बोलते, but if the profits increases, then further consideration can also be given to the fact that whether Handwood Shoes wants to expand themselves beyond just the country borders, and also the fact that whether also the fact that the 7% loan notes can even be paid off in the upcoming years as well. Secondly, the return on the investment of non-current asset 18% and 6% should also be taken into consideration. ये भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं पॉजिटिव, और क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि करंटली हैंडवुड शूज कंपनी सीम्स टू बी इन अ लिटिल बिट ऑफ अ कैश क्रंच सिचुएशंस, बिकॉज उनको वो फंडिंग पे करनी है, लोन फंडिंग पे करनी है, और उनके सप्लायर भी ना खुश है। तो अपन चालू ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना? बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिचुएशन सीईओ ने बोला था कि मतलब बेचना पड़ेगा। अभी ये सब हमने पहले से बता दिया, सो देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो खुशी होंगे, मतलब कि बेचना मतलब जरूरी है, इवन दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड दे हैव टू सेल इट, ऐसा।
for sale of children's shoes division and its consequences for profits and funding. So see, because we are emptying the loan notes, we can say that there will be significant space available now for the for further financing. And not just that, but the debt capacity also increases, and the credit rating of the company can improve once the loan note has been paid off. um, there will be significant non-current asset backing that will be available for the company or Handwood Shoes once they go in for taking another loan, बैंक लोन वगैरह, ऐसा ऐसा सब भी बोल सकते हैं. तो बहुत सारे पॉइंट्स है एक्चुअली बोलने के लिए. नाइस, काफी सारे बोले हमने. अभी चेक करते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है. Investors may query the need for the sale at this time, although the board expects the children's shoes markets to become more competitive in a few years' time. This has not yet happened. Investors may wonder if a better sales price could be obtained in a few years' time with a few more years' growth. Although some investors are concerned about gearing, a sale to reduce debt funding may seem to be a forced sale, and the investors may ask whether alternative strategies could resolve the problems. Investors may also wonder why Hainwood Shoes is not exploring the possibility of selling the production facilities. If the sale proceeds equal net book value, then the book value that would be enough to pay off 9% of the loan notes. Hainwood Shoes Company could then use the same outsourcing business model for producing children's shoes that it does for adult shoes. ठीक है, तो ये काफी अच्छे पॉइंट्स बोले इन्होंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कि भाई तुम लोग को ये डिवीजन ही क्यों बेचना है. व्हाई कांट यू जस्ट सेल ऑफ लाइक अ प्रोडक्शन फैसिलिटी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी मैंने बोला हुआ है, विच मेक सेंस. आगे, इन्वेस्टर्स में ऑल्सो बी कंसर्न वेदर हैंडवुड shoes is achieving the best value from the sale of the company. Sorry, if from the sale, if the company is going to be selling the division at 1 to 1 cent. अच्छा, ये हाँ, ये भी तो बहुत सही पॉइंट है कि क्या हम 1 to 1 cent पे ही बेचेंगे या उससे ज्यादा भी मतलब बेच सकते हैं. Assuming higher growth rate, perhaps by taking the geometric average of growth over the next 4 years would give a higher selling price. Hanwood Shoes could be expected to ask for a premium on the sale, given that the number of companies looking to develop their sales of children's shoes may be interested. That said, the cash flows in the calculation are taken to infinity, which is optimistic. Investors would also wonder about the decreased diversification that the sale would mean. Although adult shoes achieve higher margins than children's shoes, they may need more investment to maintain their position. An appeal of fashionable ranges may be uncertain. Children's school shoes have been a reliable cash generator. Ultimately, also the investors may feel that they are investing in a smaller company, given a decrease in the non-current asset base and a range in product and a range of products, and may want to invest elsewhere if the company offering better growth prospects. तो ये भाई इन्होंने बहुत सारी चीजें हाँ भाई बोली हुई है. You higher margin, actually ये काफी अच्छा पॉइंट है कि although adult shoes achieve higher margins than children's shoes, they may need more investment to maintain their position. तो ये तो अपन ने बोला था कि ज्यादा टाइम हम दे सकते हैं मतलब एडल्ट शूज के लिए वगैरह वगैरह, विच इज फाइन. आगे इन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट्स. द फोरकास्ट इंक्रीज इन अर्निंग्स पर शेयर is 9.2. ये तो मैंने वो नहीं किया कंपैरिजन, बट ठीक है. But investors will question whether the assumptions on which the forecast is based are optimistic. They will also take into account the risk of the business being less diversified. ओ हाँ, हम लोग डाइवर्सिफिकेशन तो अभी कर ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एडल्ट शूज ही बेच रहे हैं. राइट राइट राइट, मेक सेंस. They will also take into take into account the risk of the business being less diversified, as it will solely be selling adult shoes. However, part of the increase in profits is a fall in the commitment to pay interest, which investors may view positively if they are concerned about gearing. फिर आता है फंडिंग. The sale will help fund an improvement in gearing of the company. Just a second. Huh? हाँ.
ये सेल फंड बराबर, तो ये गियरिंग इंप्रूव करेगा, राइट। The funds will not only be pay off 9% immediately, they could also be used to pay off bank loan। तो ये सब भी हमने बोला हुआ है, बैंक लोन पे ऑफ करने के लिए हेल्प करेगा। हमने एक्चुअली फंडिंग में ज्यादा पॉइंट्स बोले rather देन सेल्स में ज्यादा पॉइंट बोलने के हिसाब से, बट आई फील इट्स फाइन, थोड़े बहुत तो पॉइंट्स मिल ही जाएंगे। However, investors might also wonder how future investment in adult shoe shops would be funded, particularly if future sales did not meet the current expectation। एक मिनट। However, investors might also wonder how future investment in adult shoes would be funded, particularly if future sales did not meet the current expectations. Okay. Current lenders may have placed restrictions on handwood shoes seeking new borrowing from other sources। हाँ, राइट राइट राइट। अभी के लेंडर्स ने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस मतलब डालेंगे कि भाई तुम और लोन लेने से पहले हमारा पे ऑफ कर दो। मेक सेंस। If Hanwood Shoes would be able to see additional loan capital, it would have smaller non-current asset base to offer as security, which may affect lenders' attitudes। बराबर है, अगर वो अभी लेने को जाएंगे तो उनके पास एसेट बेस ही बहुत ज्यादा छोटा है, ऐसा। सो बिकॉज अभी हमने ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, एंड हमने अभी जो मतलब बचे हुए पैसे थे वो हमने नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिए 350, तो उससे एसेट बेस बढ़ गया एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये सारे हमने पॉइंट्स बहुत एक्यूरेट बोले, बट हमने प्रॉब्लम है कि हमने सारे पॉइंट्स फंडिंग के बोले rather देन सेल्स में। सेल्स में थोड़े और ज्यादा ज्यादा पॉइंट्स बोलने चाहिए थे। इट्स फाइन।